Good morning, students. In the last class, we have started a new chapter, that is chapter 8, Small Business and Enterprises, okay, in which we have already studied the what is the meaning of the entrepreneurship concept and need and importance of the entrepreneurship, and why there is a need for entrepreneurship can be made clear from the following points, and these all are the several points like uh, any entrepreneurship is a lifeline of a nation, provide innovation, growth of economy, it increased profit also, providing the and generating the employment opportunities, as well as it provides the social benefits also. Okay, so in today's class we are going to start a topic, that is process of entrepreneurship. Okay, let's start. So entrepreneurs have to follow a sequence of steps before starting an enterprises. Okay, following is the process of entrepreneurship. Okay, so if any entrepreneur means any businessman want to start any enterprises, they have to go through the some steps to open an enterprises. Okay, so these are the some steps. First one is self discovery, next one is identifying the opportunities, third one generating and evaluating ideas, next one planning, raising startup capital, startup growth and harvest. Okay, so these all are the steps for opening or starting an enterprises. Okay, let's discuss. First one is self discovery. So under this step, entrepreneur assess what are his strength and weakness, what all he enjoy doing and his work experience. Okay, under this इस स्टेप में क्या होता है, एंटरप्रेन्योर जो होता है, बिजनेसमैन होता है, वो क्या करता है, अपने स्ट्रेंथ को असेस करता है और अपनी वीकनेस को, मींस वो किस एरिया में वो ज़्यादा उसमें स्ट्रेंथ है, किस एरिया वो उसकी वीकनेस है. तो इन द फर्स्ट स्टेप इट इज़ द सेल्फ डिस्कवरी, मींस सेल्फ को डिस्कवर करना. तो वो क्या करेगा, उसमें अपनी स्ट्रेंथ को जानेगा और अपनी वीकनेस को जानेगा. व्हाट ऑल ही इंजॉयज़ डूइंग एंड हिज वर्क एक्सपीरियंस, कौन से वर्क को करने में उसे इंजॉयमेंट मिलती है और किस में उसके पास कोई वर्क एक्सपीरियंस है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल देयर शुड बी प्रॉपरली एनी एंटरप्रेन्योर मस्ट नो हिज weakness as well as his strength. Okay, next one is identifying the opportunities. Under this step, he tries to find out the need, want and problems so that he can get an opportunity to overcome the problems and fulfill the needs. Okay, in this step any entrepreneur identify the opportunities, कि उसके वो अपने अपॉर्चुनिटीज़ को आइडेंटिफाई करेगा. ठीक, ही ट्राइज टू फाइंड आउट द नीड, कि नीड क्या है, वांट क्या है, प्रॉब्लम्स क्या है, सो दैट ही कैन गेट एन अपॉर्चुनिटी टू ओवरकम द प्रॉब्लम्स. ओके, कि वो सबसे पहले आइडेंटिफाई करेगा कि उसकी नीड क्या है, वांट क्या है, प्रॉब्लम्स कहाँ कहाँ पे उसको सफ़र करता है. तो वो अगर वो अपनी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर लेगा, रिकॉग्नाइज कर लेगा, सो दैट ही और शी विल एबल टू ओवरकम दी ऑल दीज प्रॉब्लम, कि वो उन प्रॉब्लम से जल्दी ईज़िली ओवरकम करेगा एंड फुलफ़िल दी नीड्स, और अपनी नीड्स को भी वो फुलफ़िल कर लेगा. ओके, नाउ द नेक्स्ट वन इज़ जनरेटिंग एंड इवैल्यूएटिंग आइडियाज़. So, through various measures such as discussion, brainstorming, creativity, and his own experiences, he tries to develop new ideas to overcome the problems and meet the expectation of the customers. Okay, through various measures. Okay, any entrepreneur has taken the different kind of measures.
फर्स्ट वन इज़ डिस्कशन, वो क्या करेगा, डिस्कस करेगा उसके डिफरेंट मेंबर्स के साथ। ब्रेन स्टॉर्मिंग मीन्स ग्रुप डिस्कशन करना, कि कोई भी किसी भी टॉपिक पे अगर कोई प्रॉब्लम है या कोई इसकी वीकनेस है तो उन पे क्या है, ग्रुप डिस्कशन करना और उस प्रॉब्लम का एक सॉल्यूशन निकालना, उन प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करना। क्रिएटिविटी कि कितनी उसमें क्रिएटिविटी है, कितनी अदर मेंबर में क्रिएटिविटी है, और उन सारी क्रिएटिविटी को सम अप करके हम क्या कर सकते हैं, कोई न्यू आइडिया को जनरेट कर सकते हैं। एंड हिज ओन एक्सपीरियंस, और उसके जो खुद के भी एक्सपीरियंसेस हैं, ही ट्राई टू डेवलप न्यू आइडियाज़, वो क्या, ही ट्राई और शी ट्राई एनीवन, सो वो क्या ट्राई करता है या करती है कि वो एक न्यू आइडिया को क्या करे, जनरेट और डेवलप करे, टू ओवरकम दी प्रॉब्लम्स, जो भी प्रॉब्लम्स है उनसे ओवरकम करने के लिए, एंड मीट द एक्सपेक्टेशन ऑफ द कस्टमर, कि जो भी कस्टमर्स की एक्सपेक्टेशन है कि वो उसको ऐसी कमोडिटी मिलेगी, देन ही और शी विल मोर सेटिस्फाइड। सो द एनी एंटरप्रेन्योर ऑल्सो वांट टू satisfy the needs of the customer also. Okay, so the first step is self discovery. Okay, in this step any entrepreneur assess his weakness as well as his strength. Next one is he can also identify what are the different kind of opportunities in front of him or her, that what are the different need, want and problems, so that he can overcome from the problems and fulfill all the needs. Next one is generating and evaluating ideas. Okay, any entrepreneur want to generate the new ideas. For that purpose he can do discussion with the other members, as well as he also do some creative works and try to develop new ideas to overcome the problem, as well as he also want to satisfy the human needs also and up to the expectation of the customer also. Okay, now the next one is planning. Okay, under this step entrepreneur conduct research, make business plan and strategies. Okay, इस स्टेप में क्या करेगा कोई भी एंटरप्रेन्योर बिजनेसमैन, रिसर्च को कंडक्ट करेगा, मीन्स डिफरेंट काइंड ऑफ सर्चिंग करेगा। रिसर्च मीन्स सर्चिंग अगेन एंड अगेन, कि क्या कैसे वो अपनी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ कर सकता है, कैसे न्यू आइडियाज़ को जनरेट कर सकता है, डिफरेंट काइंड ऑफ प्लान बनाएगा कि बिज़नेस के कैसे प्लान होंगे, कि हम कौन सी कमोडिटी को प्रोड्यूस करेंगे, किसके थ्रू प्रोड्यूस करेंगे, लेबर इंटेंसिव यूज़ करेंगे, कैपिटल इंटेंसिव यूज़ करेंगे, मार्केटिंग करेंगे, सेल्स प्रमोशन कैसे करेंगे, एडवर्टीज़मेंट करेंगे। तो ये सारे बिजनेस प्लान क्रिएट करता है एंड डिफरेंट काइंड ऑफ स्ट्रैटेजीज ही हैज़ ऑल्सो मेड. Next one is raising startup capital. By using business plan, entrepreneur try to attract venture capitalist and partners. Okay, अपने प्लान को यूज़ करके एंटरप्रेन्योर क्या करता है, अट्रैक्ट करता है डिफरेंट अदर कैपिटलिस्ट को, कि जो क्या करे, इन्वेस्ट करे, एज वेल एज उसके पार्टनर भी बने. नेक्स्ट वन इज स्टार्टअप. अंडर दिस स्टेप द एंटरप्रेन्योर लॉन्चेज हिज एंटरप्राइज एंड ट्राई टू डेवलप मोर कस्टमर. ओके, इस स्टेप में क्या होता है, एंटरप्रेन्योर जो होता है वो अपने एंटरप्राइज को लॉन्च करता है और ट्राई टू डेवलप मोर एंड मोर कस्टमर, और न्यू कस्टमर्स को डेवलप करता है. अब वो अपनी कमोडिटी को क्या करेगा, मार्केट में ले आएगा और मोर एंड मोर कस्टमर को वो इंक्रीज़ करेगा. ही कैन ऑल्सो मेक चेंजेस एज पर द चेंज इन दी इन्वायरमेंट. ओके, सो दैट ही कैन ऑल्सो मेक एनी चेंज, कि वो इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग क्या है, अपने कमोडिटी, अपने प्रोडक्ट में चेंज भी लेकर आएगा. ओके, नेक्स्ट वन इज़ ग्रोथ. एंटरप्रेन्योर ट्राई टू expand and grow the enterprises. Okay, entrepreneur he always or she always try to expand his business as well as grow his or her enterprises. ठीक है, वो अपने बिजनेस को क्या है, वो और एक्सपैंड करता जाएगा, कि अगर वो और एक्सपैंड करेगा तो उसके जो डिफरेंट कस्टमर्स हैं वो भी क्या होंगे, इंक्रीज़ करेंगे. नेक्स्ट वन इज़ हार्वेस्ट. This means selling the business and harvesting the reward. Many entrepreneurs sell their existing business and start a new venture. It means कि इसमें क्या होता है कि अपने बिजनेस को वो क्या करते हैं, सेल कर देते हैं और
जो उसको सोल्ड आउट करने के बाद उनको जो मनी होता है उसको वो कलेक्ट करते हैं। मैनी एंटरप्रेन्योर्स सेट देयर एग्जिस्टिंग बिजनेस, कि वो जो भी उनका एग्जिस्टिंग बिजनेस है जो ऑलरेडी अभी रन कर रहा है उसको क्या कर देते हैं, सोल्ड आउट कर देते हैं किसी अदर इंटरेस्टेड एंटरप्रेन्योर को, एंड स्टार्ट अ न्यू वेंचर। अपने न्यू बिजनेस को, न्यू एंटरप्राइजेस को वो क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। सो दीज ऑल आर दी स्टेप्स और द प्रोसेस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। ओके, now the next topic is Startup India scheme. Okay, so Startup India is an initiative of Government of India. The campaign was first announced by the Prime Minister Mr. Narendra Modi in his speech on 15 August 2015. Startup India is an action plan to develop an ecosystem to promote and nurture the entrepreneurship across the country. Government is offering various bank financing scheme to promote startup. Okay, in this scheme it is the initiative of the Government of India. ये Government of India का initiative है और ये कैंपेन कब फर्स्ट अनाउंस हुआ था, प्राइम मिनिस्टर ने, नरेंद्र मोदी ने अपने स्पीच में 15 अगस्त में इसको लॉन्च किया था, अनाउंस किया था। सो स्टार्टअप इंडिया क्या है, एक एक्शन प्लान है, इस जो कोई प्लान है जिसको एक्शन में लाना है टू डेवलप एन इकोसिस्टम टू प्रमोट एंड नर्चर द एंटरप्रेन्योरशिप अक्रॉस द कंट्री, की जो डिफरेंट एंटरप्रेन्योरशिप है उसको क्या करना है, नर्चर करना है, मीन्स टीच करना है और डिफरेंट एंटरप्रेन्योर्स को डेवलप करना है अक्रॉस द कंट्री, इन ऑल ओवर द कंट्री। गवर्नमेंट इज़ ऑफरिंग वेरियस बैंक फाइनेंसिंग स्कीम। गवर्नमेंट क्या है, डिफरेंट बैंक फाइनेंसिंग, बैंक के थ्रू फाइनेंसिंग स्कीम्स भी क्या कर रही है, लॉन्च कर रही है टू प्रमोट दी स्टार्टअप। ओके, कोई भी बिजनेस अगर स्टार्ट करने जाएगा तो वो उसको क्या है, फ़ंड की ज़रूरत होगी। अब फंड के लिए वो किधर जा सकता है, बैंक में जा सकता है। तो गवर्नमेंट ने ऑल्सो ऑफ़र किया, बैंक्स को बोला कि आप फाइनेंसिंग एक्टिविटी कंडक्ट कराओ, फाइनेंसिंग स्कीम करो टू प्रमोट दी स्टार्टअप। की अब जो हम लोग दूसरी कंट्री पे क्या है, डिपेंडेंट होते हैं हर प्रोडक्ट के लिए, अगर अपनी ही कंट्री में लोग कमोडिटी को प्रोड्यूस करेंगे सो दैट वी विल नॉट डिपेंडेंट इन द फ्यूचर ऑल्सो, कि हम लोग अदर कंट्री पे क्या है, डिपेंडेंट नहीं रहेंगे, हम लोग क्या होंगे, इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। सो दिस स्टार्टअप इंडिया इज़ अनाउंस्ड, कि ये बेसिकली इसीलिए अनाउंस्ड किया गया कि हम लोग क्या है, डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ में गुड्स प्रोड्यूस होंगे और लोग डोमेस्टिक प्रोडक्ट को यूज़ करेंगे, एंड वी विल बॉयकॉट दी इम्पोर्टेड गुड्स, की हम लोग जो भी इम्पोर्टेड गुड्स हैं उनको बॉयकॉट करेंगे। ओके, नेक्स्ट वन इज़ व्हाट इज़ द मीनिंग, डेफिनेशन एंड व्हाट इज़ स्टार्टअप। So a startup is a business enterprises in the form of private limited company, partnership, limited liability partnership or sole proprietor registered in India, which was started less than 5 years ago and have annual turnover of less than 25 crore. To be eligible for startup, the enterprise should not have formed by splitting up or reconstruction, and its turnover should not be exceeded 25 crore since its existence. Okay, a startup is a business. Okay, एक business enterprises है in the form of private limited, private limited के फॉर्म में है, कंपनी के फॉर्म, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी फॉर्म में है, ये पार्टनरशिप भी हो सकती है, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप भी हो सकती है, कि उसमें मेंबर्स हों जो डिफरेंट, जो पार्टनर हों उनकी क्या हो, लायबिलिटी विल आल्सो बी लिमिटेड, एंड द सोल प्रोप्राइटर, कोई एक सिंगल ओनर भी के थ्रू भी ये रन हो सकता है, रजिस्टर्ड इन इंडिया, वो इंडिया में ही रजिस्टर्ड हो। ओके, कि ये नहीं कि वो यूएस में रजिस्टर्ड हो, नहीं, उसका रजिस्ट्रेशन इंडिया में हो, विच वॉज स्टार्टेड लेस देन 5 ईयर, कि जो भी कंपनी क्या हो, लेस देन 5 ईयर में ही वो स्टार्ट हुई हो, मतलब 5 साल के अंदर ही वो स्टार्ट हुई हो, एंड हैव टर्नओवर ऑफ लेस देन 25 करोड़, और उस कंपनी का टर्नओवर, जो ओवरऑल टर्नओवर होता है मीन्स प्रॉफिट, वो क्या हो, 25 करोड़ से लेस देन हो। सो टू बी एलिजिबल फॉर द स्टार्टअप के लिए एलिजिबल होने के लिए क्या है, द एंटरप्राइज शुड नॉट हैव फॉर्म्ड बाई स्प्लिटिंग अप और द रिकन्स्ट्रक्शन, कि कोई भी एंटरप्राइजेस, ऐसा नहीं कि दो पार्टनर्स ऑलरेडी काम कर रहे हों
और वो लोग क्या है स्प्लिट होके स्टार्टअप करें, नहीं, इसकी एक कंडीशन ये है कि वो स्प्लिट ना हुए और रिकंस्ट्रक्शन उनका नहीं हुआ। मींस दो पहले क्या एक साथ काम कर रहे थे, फिर लेफ़्ट आउट कर गए, मतलब क्विट कर दिए, एंड देन अगेन क्या हो गया वो दोनों ज्वाइन कर गए, नहीं, इसकी ये कंडीशन है कि वो कंपनी या कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी वो क्या हो, पार्टनरशिप क्या हो कि वो स्प्लिट नहीं हुई हो, अलग नहीं हो, और या वो रिकंस्ट्रक्ट नहीं हुई होगी। एंड इट्स टर्नओवर शुड नॉट हैव एक्सीडेड 25 करोड़, कि एग्जिस्टेंस से अभी तक उसकी जो टर्नओवर है वो 25 करोड़ से लेस से ज़्यादा नहीं होगी। सो इट इज़ ऑल दी सम एलिजिबिलिटी टू बी अ स्टार्टअप। देयर आर ऑल्सो some schemes and ways to fund startup by गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ओके, सो बहुत सारी स्कीम्स है और वेज हैं कि फ़ंड कैसे मिलेगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कैसे इन सारे स्टार्टअप को, ये जो सारे बिजनेस हैं उनको कैसे फ़ंड प्रोवाइड होगा। सो द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज़ टेकिंग लॉट ऑफ स्टेप्स टू इनकरेज स्टार्टअप प्रोजेक्ट। ओके, सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या करी, बहुत सारे स्टेप्स को ले रही है कि स्टार्टअप प्रोजेक्ट को वो प्रमोट कर सके, इनकरेज कर सके। सो कॉमन स्कीम्स बेनिफिट्स ऑफर्ड बाय गवर्नमेंट आर, जो सारी स्कीम्स और बेनिफिट गवर्नमेंट प्रोवाइड करी है वो क्या है, नो इंस्पेक्शन। ओके, फर्स्ट वन इज़ नो इंस्पेक्शन। अंडर दिस स्कीम no inspection would be carried out at startup for 3 years regarding labor's law, as they need only for selfification। okay, कि इस स्कीम के अंदर कि 3 years के अंदर कोई भी गवर्नमेंट के थ्रू इंस्पेक्शन नहीं होगा। ओके, एज दे ओनली नीड फॉर ओनली सेल्फिकेशन, मीन्स वो अपने खुद को सेल्फ सफिशिएंट हैं, कि वहाँ पे कोई भी ज़रूरत नहीं है कि जो भी उनका ओन डिज़ायर है बस उस एज दे नीड ओनली फॉर दी सेल्फिकेशन, मीन्स अपनी नीड और डिज़ायर के लिए वो सफिशिएंट है। ओके, इन दैट केस गवर्नमेंट की ओर से कोई भी इंस्पेक्शन नहीं होगा। इसकी फर्स्ट एक स्कीम थी। नेक्स्ट वन इज़ रजिस्ट्रेशन। सो गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड अ मोबाइल ऐप in April 2016 and a portal that will allow startup to get registered in one day. In addition, there will be a single window for the clearance, approvals and registration. Okay, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया, एक ऐप को, मोबाइल ऐप को लॉन्च किया अप्रैल 2016 में, एंड अ पोर्टल विल अलाउ स्टार्टअप टू गेट रजिस्टर्ड इन वन डे। ठीक है, जो भी अगर किसी का पोर्टल क्या अलाउ कर रहा था, जो पोर्टल बना था, अब किसी का भी उसके ऐप पे अपना जो भी उन्होंने अपने अकाउंट को बनाया, तो वो क्या था, वो एक ही दिन में किसी का भी स्टार्टअप रजिस्टर्ड हो जा रहा था। इन एडिशन देयर विल बी अ सिंगल विंडो, एक वहाँ पे क्या था, सिंगल विंडो की बात हुई थी, मीन्स सारी जो भी फैसिलिटीज़ थी वो एक ही प्लेस पे मिल रही थी। ऐसा नहीं जैसे एक नॉर्मल कोई भी बिज़नेस को इस्टेब्लिश करना होता है तो अलग अलग फैसिलिटीज़ अलग अलग हो जगह होती। रजिस्ट्रेशन के लिए हमको कहीं और जाना होता है, लोन के लिए हमको कहीं और जाना होता है, या पूरी क्लियरेंस की जो भी पहले का है वो सब कुछ क्लियरेंस करने के लिए हमें कहीं और जाना पड़ता है। तो ये जो सारी स्टार्टअप में फैसिलिटीज़ थी वो सिंगल विंडो थी, मीन्स ऑल फैसिलिटीज़ एट वन प्लेस। तो जिसमें एक अप्रूवल हुआ, रजिस्ट्रेशन हुआ, वो सारी फैसिलिटीज़ एक ही जगह पे मिल रही थी। नेक्स्ट वन इज़ इनकम टैक्स एग्जेम्पशन। इनकम टैक्स एग्जेम्पशन इज़ अवेलेबल फॉर दी फर्स्ट 3 years. This exemption is available only for obtaining a certificate from interministerial board set up for this purpose. Okay, इसमें भी क्या था, फॉर फर्स्ट 3 years, मतलब फर्स्ट के जो 3 years थे उनमें इनकम टैक्स एग्जेम्पशन था, मीन्स कोई भी इनकम टैक्स को पे नहीं करना है। ठीक, दिस एग्जेम्पशन इज़ अवेलेबल ओनली फॉर ऑब्टेनिंग अ सर्टिफिकेट। ये बेसिकली एग्जेम्पशन क्यों किया था कि एक मिनिस्ट्रियल बोर्ड की ओर से एक सर्टिफिकेट को ऑब्टेन करने का, टू सेटअप फॉर दी पर्पस। ओके, बेसिकली इसी के लिए क्या था, ये एग्जेम्पशन प्रोवाइड किया गया था। नेक्स्ट वन इज़ कैपिटल गेन टैक्स एग्जेम्पशन। सो द कैपिटल गेन टैक्स मीन्स कि जो भी गेन हो रहा था, वो लोग को प्रॉफिट हो रहा था, तो उस पर भी जो टैक्स इम्पोज किया जाता है उस पर भी क्या था, इन लोग को फर्स्ट 3 year के लिए एग्जेम्पशन था कि कोई भी जो भी प्रॉफिट पे उनको कोई भी टैक्स को पे नहीं करना पड़ रहा था। ओके, now the next one is
benefit in patent and intellectual property. Okay, so basically benefit in patent mean simply होता है एक sole right to anything, ठीक, कि फॉर एग्ज़ाम्पल ये मेरा फ़ोन है, ओके, अब इस पे क्या है, मेरा एक पेटेंट हो गया है कि अदर इंडिविजुअल नॉट एबल टू प्रोड्यूस दिस फ़ोन, ओके, उन्हें कोई भी इतनी अथॉरिटी नहीं है कि कोई और इस फ़ोन को प्रोड्यूस कर सके, ओके, उन्हें क्या लेना पड़ेगा, मेरे से परमिशन लेनी पड़ेगी, तब वो जाके इस पर कुछ वर्क कर सकते हैं, तो इट इज़ कॉल्ड दी पेटेंट. Okay, so intellectual property means it is a property which is related to your की creativity, patent and copyright, की तुम में कैसी प्रॉपर्टी पे तुम्हारी जो तुम खुद इंटेलेक्ट कर रहे हो, मीन्स तुम खुद डिज़ाइन कर रहे हो, वैसी प्रॉपर्टी पे भी क्या होता है, अपना एक राइट होता है. ओके, अदर पीपल तुम्हारी क्रिएटिविटी पे, तुम्हारे कॉपीराइट पे कोई भी उनका एक राइट नहीं हो सकता है. ओके, वो तुम्हारी ही एक क्या है, प्रॉपर्टी है, और अगर कोई इंडिविजुअल उसको यूज़ करना पड़ता है तो उसको एक चार्ज करना पड़ता है, एंड दैट चार्ज इज़ कॉल्ड रॉयल्टी. ओके, इट इज़ कॉल्ड रॉयल्टी. सो इन पेटेंट कॉस्ट स्टार्टअप कैन क्लेम एन 80% रिबेट. ओके, जब पेटेंट की बात आती थी, जब किसी अगर कोई भी कमोडिटी प्रोड्यूस करना है, ठीक है, अब मैंने क्या किया, ये फ़ोन को प्रोड्यूस किया, तो मुझे इस फ़ोन को पेटेंट करने के लिए, मीन्स अपनी सोल अथॉरिटी शो करने के लिए, मुझे इस पर क्या करना था, टैक्स पे करना पड़ता है, मतलब कुछ अमाउंट मेरे को पे करना पड़ता है. तो इन द केस ऑफ स्टार्टअप, इन पेटेंट कॉस्ट में क्या था, स्टार्टअप कैन क्लेम 80% रिबेट. ठीक है, उन लोगों को क्या मिला था, 80% डिस्काउंट मिल जा रहा था, ओनली 20% उनको कॉस्ट पे करना पड़ रहा था. दैट मीन्स इफ़ अ स्टार्टअप अप्लाई फॉर द पेटेंट, द गवर्नमेंट विल गिव 80% रिबेट इन फीस. ठीक है, गवर्नमेंट क्या कर रही थी, 80% उनको फीस में डिस्काउंट दे रही थी, और दे हैव टू पे ओनली 20%, कि अगर मेरे को इसका अमाउंट का, मतलब इस फ़ोन का 1 लाख पे करना है, मतलब 1 लाख है अगर अमाउंट कॉस्ट मेरे को पे करना है, तो 20% ही मुझे इसका पे करना पड़ेगा, और 80% गवर्नमेंट ने क्या कर दिया था, रिबेट कर दिया था, डिस्काउंट दे दिया था. ओके, सो इवन फास्टर पेटेंट रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन फॉर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स आर ऑल्सो प्रोवाइडेड अंडर दिस स्कीम. ठीक है, किसी को बहुत स्पीडली क्या था, रजिस्ट्रेशन कराना था, और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी पे भी किसी को प्रोटेक्शन करना था, तो ये सारे भी उसी स्कीम के अंडर आ रहे थे. ओके, नाउ द नेक्स्ट वन इज़ फंडिंग स्कीम्स फॉर स्टार्टअप. ठीक है, कि फंडिंग स्कीम, कि फ़ंड कैसे प्रोवाइड हो रहा था थ्रू बैंक. सो गवर्नमेंट हैज़ अनाउंस्ड ₹10,000 करोड़ फंड फॉर अ न्यू स्टार्टअप एंड 5 करोड़ फॉर क्रेडिट गारंटी स्कीम. ओके, सो गवर्नमेंट ने क्या किया था, गवर्नमेंट हैज़ अनाउंस 10,000 करोड़ फंड को उन्होंने अनाउंस किया कि कोई भी बिज़नेस स्टार्ट करेगा तो उसको इतना अमाउंट, सब इंडिविजुअल नहीं, मतलब टोटल अमाउंट इतना उन्होंने लॉन्च किया, अनाउंस किया था कि जिसे नीडी है वो बैंक के थ्रू क्या कर सकता है, लोन ले सकता है फॉर अ न्यू स्टार्टअप, एंड 500 करोड़ फॉर द क्रेडिट गारंटी स्कीम. जो भी क्रेडिट जो भी लोन लेने की जो स्कीम्स थी, गारंटी, उस पर उन्होंने, गवर्नमेंट ने 500 करोड़ को इशू किया था. इवन फॉरेन एड इज़ ऑल्सो प्रोवाइडेड टू स्टार्टअप. ओके, थ्रू दी फॉरेन कंपनी और फॉरेन बैंक के थ्रू भी फैसिलिटी बैंक फंड की हो रही थी. फॉर एग्जांपल, अ सॉफ्ट बैंक ऑफ जापान इन्वेस्टेड $2 बिलियन इंडियन स्टार्टअप के लिए क्या किया, इन्वेस्ट किया. मीन्स अभी क्या थे, जो फॉरेन एड थे, मतलब फॉरेन से भी जो हेल्प मिल सकती थी वो भी प्रोवाइड हो रही थी. सो जो जापान का सॉफ्ट बैंक ऑफ जापान, उन्होंने भी क्या किया था, $2 बिलियन इन्वेस्ट किया था इंडियन स्टार्टअप के लिए. ओके, सो फॉलोइंग आर दी लिस्ट ऑफ द 10 फंडिंग ऑप्शंस फॉर द स्टार्टअप टू हेल्प रेज capital. Okay, so these all are the 10 funding options. First one is self funding. So to start business, self funding is first option on later
stage investor may get attracted. Okay, so in which बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए एक फर्स्ट ऑप्शन ये भी था कि सेल्फ फंडिंग मीन्स जो किसी भी इंडिविजुअल के पास अगर खुद का भी फंड है तो दे कैन इन्वेस्ट इट फॉर देयर स्टार्टअप. नेक्स्ट वन इज क्राउड फंडिंग एज अ फंडिंग ऑप्शन. So crowdfunding is the one of the newer ways of funding a startup that has been gaining lot of popularity lately. It is like taking a loan, pre-order contribution or investment from more than one person at the same time. This is how crowding work. An entrepreneur will put up a detailed description of his business on a crowdfunding platform. He will mention the goal of the business, plan for the making a profit, how much funding he needs and for what reason, etc. And then investor can read about the business and give money if they like the ideas. Though those giving money will make online pledge with the promise of pre-buying the product or giving a donation. Anyone can contribute money towards helping a business that they really believe in. Okay, so it is the one of the also major or the option for the funding and it is the crowdfunding. So crowdfunding क्या था, ये बहुत एक न्यूअर टॉपिक था बट इसको पॉपुलैरिटी क्या थी बहुत लेटली मिली. तो क्या होता है क्राउडिंग फंक्शन? क्राउडिंग फंक्शन मीन्स सिंपली एक कोई एंटरप्रेन्योर है, ठीक, एंटरप्रेन्योर क्या करेगा, वो अपना सारा डिस्क्रिप्शन दे देगा, ठीक, कि वो क्राउडिंग फंक्शन प्लेटफॉर्म पे एक इन लोग का प्लेटफॉर्म होता है जहाँ पे ये सारी जिसको भी फंड की नीड है वो वहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन देगा. उसके इन्फॉर्मेशन में क्या होगा कि उसका गोल ऑफ हिज बिज़नेस, कि उसके बिज़नेस का गोल और ऑब्जेक्टिव क्या है, व्हाट ही वांट्स टू फुलफिल, प्लान्स फॉर द मेकिंग अ प्रॉफिट, कि वो कैसे प्लान्स बनाया है कि प्रॉफिट मेक करने का, हाउ मच फंडिंग ही नीड्स, उसे कितने फ़ंड की नीड है, एंड फॉर व्हाट रीज़न, कि उसे किस रीज़न के लिए फ़ंड की ज़रूरत है. एंड देन इन्वेस्टर कैन रीड अबाउट दी बिजनेस. ओके, सो जो इन्वेस्टर हैं जो मनी इन्वेस्ट करेंगे वो उसके बिज़नेस के बारे में रीड आउट करेंगे, पढ़ेंगे एंड गिव मनी इफ़ दे लाइक द आइडिया और दे विल प्रोवाइड द मनी इफ़ दे लाइक द आइडिया. अगर वो लोग को उस एंटरप्रेन्योर की ये आइडिया को पसंद आया कि हाँ ये सारा सही कह रहा है, ये इन्वेस्टमेंट करेगा, अगर हम लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे तो प्रॉफिट विल मेक, और अगर प्रॉफिट होगा तो हम लोग को अभी जो फ़ंड हम लोग दे रहे हैं वो भी मच हायर देन रेट पे भी हमको प्रॉफिट मिलेगा. सो दोज गिविंग मनी विल मेक ऑनलाइन प्लेज विद द प्रॉमिस ऑफ प्री बाइंग दी प्रोडक्ट. ओके, ये जो वो लोग क्या थे, ऑनलाइन प्रोडक्ट ऑनलाइन पेमेंट करते थे विद द डिपॉजिट विद द प्रॉमिस, इस प्रॉमिस के साथ कि वो प्री बाइंग द प्रोडक्ट, कि वो पहले ही उसके प्रोडक्ट को बाई करेंगे और गिविंग अ डोनेशन, और उसको डोनेशन प्रोवाइड करेंगे. एनी वन कैन कंट्रीब्यूट मनी टुवर्ड हेल्पिंग अ बिजनेस. ठीक है, कोई भी इंडिविजुअल क्या कर सकता है, मनी को प्रोवाइड कर सकता है टुवर्ड दी हेल्पिंग अ बिजनेस को हेल्प करने के लिए, दैट दे रियली बिलीव इन, जिस वो बिजनेस पे बिलीव करते हैं. ओके, नाउ द नेक्स्ट वन इज गेट angel investment in your startups. So what we have studied till now, self funding, crowdfunding as a funding option, and the next one is get angel investment in your startup. So angel investors are individual with surplus cash and keen interest to invest in upcoming startup. Angel investors have helped to start up many prominent companies including Google, Yahoo and Alibaba. This alternative form of investing generally occurs in a company's early stage of growth, with investors expecting up to a 30% equity. They prefer to take more risk in investment for the higher return. Okay, so who are angel investors? Angel investors are individual with surplus cash. कि angel investor वो investors होते हैं जिनके पास जो अमाउंट फंड का अमाउंट होता है वो सरप्लस होता है, बहुत ज़्यादा होता है, एंड दे आर ईगरली इंटरेस्टेड. कीन मीन्स ईगर, कि वो बहुत ईगरली इंटरेस्टेड होते हैं टू इन्वेस्ट इन
अपकमिंग स्टार्टअप, कि कोई भी अपकमिंग स्टार्टअप है, कोई बिजनेस है, सो दे विल इन्वेस्ट देयर मनी. एंजल इन्वेस्टर हैव हेल्प टू स्टार्टअप मैनी प्रोमिनेंट कंपनीज. ठीक है, जो एंजल इन्वेस्टर्स होते हैं वो बहुत सारी फेमस कंपनीज में भी इन्वेस्टमेंट किए हैं, लाइक गूगल, याहू एंड अलीबाबा. सो दिस ऑल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ इन्वेस्टिंग जनरली ऑकर्स इन अ कंपनी अर्ली स्टेज ऑफ ग्रोथ. ओके, ये जो फॉर्म इन्वेस्ट करने का ये क्या है, अर्ली स्टेज, जो कंपनी के अर्ली स्टेज का सिचुएशन होता है, पॉइंट होता है, उसी टाइम दे इन्वेस्ट करते हैं. विथ इन्वेस्टर्स एक्सपेक्टिंग अप टू 30% इक्विटी, कि उन सारे इन्वेस्टर्स के साथ जिनसे वो 30% इक्विटी को एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि दैट दे विल परचेज और दे विल परचेज द इक्विटी ऑफ द दैट कंपनी. सो दे प्रेफर टू टेक more risk in investment for higher return. Okay, they always try to take more and more risk only because of taking the more and more return. So no risk, no gain. Okay, higher the risk, higher will be the gain. So angel investors, also those investors, they are always prefer to take more and more risk for the higher return. Okay, so it's all about your today's class. We will continue further in the next class.